کرتے ہیں اچھا کہ آیا وہ کھانا ٹھیک ہے یا نہیں. سارا کھا کے چیک کرتے تو ہم کیا کھائیں؟ دیکھیں میری بات سنیے, زیادہ کھائیں گی تو سو جائیں گی. کیا مطلب ہے آپ لوگ ان لوگ کی لنچ کھا جاتے ہیں؟ آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں ایسا نہیں. دیکھیں کون کھاتا ہے پھر؟ وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ بچے آپس میں کھاتے کم ہے, گراتے زیادہ ہے. جی نہیں, ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں ایسا نہیں ہوتا, دیکھیے ایسا بالکل نہیں ہے. کلاس تو چلتا ہے. ارے ایسا نہیں دیکھیں آپ کے سامنے مارا. نہیں پیار کیا. نہیں ایسے نہیں کریں پلیز. جی میں آپ کی پین لے لوں. نہیں ابھی نہیں, ابھی آپ رکھ لیں. اچھا مجھے بتائیے یہ پڑھائی میں کیسی ہے, یہ بتائیے. پڑھائی میں نہیں, بالکل فارغ کیا مطلب؟ بس وہ کوئی رزلٹ ہی نہیں ہے اس کا. فارغ نہیں ہوں گی تو اور کیا ہوں گی؟ ہمارے سر کو بھی تھوڑی نا کچھ آتا ہے. آپ کو میں ایک بار کی بات بتاؤں آنٹی ایک بات بتاؤں, پتہ ہے کیا میں نے سر سے خالی اتنا پوچھا کہ سر یہ بتائیے کہ امریکہ کے صدر کہاں رہتے ہیں, تو پتہ ہے سر نے کیا کہا؟ جی کیا کہا؟ سر نے کہا لیاری میں. اب آپ بتائیے بات صحیح ہے؟ لیاری میں امریکہ کے صدر؟ دیکھیں میری بات سنیے, میں نے کہا تھا نہیں ایک منٹ, آپ اگر واشنگٹن میں رہتے ہیں, کہہ رہے نہیں وہ تو کالا. میں نے کہا جس طرح کے لیاری کے بندے ہیں نا اسی طرح کے وہ بھی ان کے صدر ہیں. میں نے یہ بات کی تھی بیٹے کیسا سر کو ذلیل کرنے پہ لگی ہوئی ہو, تم اسکول تو چلو. کس طرح کے آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کیا بچوں کو سکھا رہے ہیں؟ آپ موسیٰ ماما رہتا ہے نا ایک لیاری میں, اوباما اور موسیٰ ماما کی شکل ملتی ہے. میں نے کہا یہ دیکھو یہ موسیٰ ماما, یہ اوباما ہے. یہ اگر اچھا ٹھیک ہے چھوڑیں اس بات کو, چھوڑیں. مجھے بتائیں کہ انہوں نے کچھ کمپلینٹس نوٹ کروائی ہیں, جس میں سے ایک یہ ہے کہ آپ لوگ بچوں کا لنچ کھا جاتے ہیں, ایک یہ ہے کہ جی آپ لوگ مارتے بہت ہیں, آپ لوگ غلط طریقے سے بچوں کو ٹیچ کرا رہے ہیں. سیکنڈ یہ چیز ہے آپ لوگ, ایک منٹ, آپ لوگ کچھ فنکشنز اس طرح سے کرتے ہیں جس میں بچوں کے گھر سے چیزیں منگواتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ بچوں کو ایک تو ریٹرن بھی نہیں کرتے ہیں. سیکنڈ یہ چیز یہ وہ آپ اپنے اسکول میں اس کو سجاوٹ کے طور پہ رکھ لیتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہم مارتے زیادہ ہیں. آپ نے کہا, میں نے نہیں کہا, مجھے کمپلین آئی ہے اس لیے ہم نے آپ کو بلوایا. جی ہاں مارتے زیادہ ہیں, ان کا کھانا کھا جاتے ہیں. یہ اپنے بچے وہاں سے اٹھا لیں. اگر ہم اتنے برے ہیں, ہمارا رزلٹ دیکھیے جی. کیا رزلٹ ہے آپ لوگوں کا؟ آپ دیکھیے 78% آتا ہے ہمارا. 78 کو اتنا کیوں نہیں آئے گا؟ اگر پیسے دیں گے تو کیوں نہیں آئے گا؟ پتہ ہے مس میں کون سی کلاس میں ہوں؟ آپ کو پتہ ہے آنٹی میں نا 3ری کلاس میں ہوں, اور نا سر مجھے کہتے ہیں بیٹا آپ ہے نا چھوٹی عمر میں نا جلدی سے میٹرک کر لو گی نا, تو پھر نا جو چھوٹی عمر میں ہی آپ ہے نا BA BCom جو کرنا کر لو گی. نہیں میں نے لیکن کہا سر کیسے؟ تو انہوں نے کہا مجھے صرف 500 روپے لا کے دو, میں تمہیں میٹرک کرا دیتا ہوں. 500 روپے میں میٹرک ہو سکتا ہے؟ نہیں آپ نے یہ بات کہی کیوں؟ دیکھیں یہ دماغ سے چھوٹی ہے, ویسے بہت بڑی ہے. یہ اس کی باتوں سے اندازہ نہیں ہو رہا, یہ ویسے بڑی ہے, یہ مینٹلی طور پہ 3-4 سال کی. نہیں لیکن مجھے آپ کے ایٹیٹیوڈ سے لگ رہا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے بیچ میں. جی ہاں نہیں ایسی دیکھیں کوئی بات نہیں. باقی جو آپ نے کہا نا, نہیں مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا نا. میں بات سنیے, باقی آپ نے جو کہا کہ ہم گھر سے چیزیں منگواتے ہیں, جی ہم پریکٹیکل کرواتے ہیں ان بچوں سے کہ آیا خالی پڑھائی نہیں ہوتی, پریکٹیکل ہی سب کچھ ہوتا ہے کہ وہ وہاں کر کے دکھائے, ٹھیک ہے وہ وہاں نہیں. وہ تو میں سمجھ رہی ہوں آپ کی بات کہ آج کل جی پڑھائی جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہو رہی ہے جو پہلے زمانے میں ہوتی تھی. اب تو ہم پورے پریکٹیکلز ہوتے ہیں ہر وقت. جب آج سے ہم لوگ پڑھتے تھے سرکاری اسکولوں میں تو ہم ایک چارٹ بناتے تھے, اس پہ پینٹنگ کرتے تھے. پینٹنگ ہم کہاں سے لاتے تھے؟ گھر سے لاتے تھے. چارٹ کہاں سے لاتے؟ ہاں بالکل صحیح ہے, وہ صحیح ہے. جب بن جاتی تھی اچھی ہوتی تو وہ ہم گھر نہیں لے کے جاتے, تو وہ ہماری کلاس روم میں ہمارے نام سے لگی ہوئی. جی ہاں تو سیم وہی چیزیں ہم لاتے, یہ لاتے ہیں, وہ بنا کے ہم رکھ دیتے ہیں اسکول میں بچے کے نام سے. لیکن بیٹا وہ تو آپ لے کر کے اگر جاتی ہیں اور وہاں پہ کوئی بھی چیز بناتی ہیں اور پھر اس کو اپنی کلاس میں رکھتی ہیں تو وہ آپ کے نام سے لگا کے رکھا گیا جاتا ہوگا نا. کوئی نہیں, سب کے نیچے سر کا نام لکھا ہوا ہے, ہمارا کہیں نام نہیں لکھا ہوا. بہت ساری چیزیں جو ہے نا انہیں کسی کو دینی ہوتی ہے, جیسے ڈونیشن وغیرہ سب ہم سے منگواتے ہیں. لیکن یہ نا سب اپنی اسکول کے کہتے ہیں ہم تو بچوں سے کچھ نہیں لیتے, اور جب کوئی ہمارے اسکول میں وزٹ کرنے آتا ہے نا تو پتہ ہے کیا سر کہتے ہیں خبردار کسی نے کچھ کہا ڈنڈے سے ماروں گا. ہم سب چپ ہو جاتے ہیں, ہم کیا کریں. اور جو وزٹ کرنے آتا ہے ہمیں کوئی گفٹ دیتا ہے نا تو پتہ ہے سر وہ گفٹ بھی رکھ لیتے ہیں اور جا کر نا پڑوس کی دکان میں بیچ دیتے ہیں, اور پھر نا اس کے بعد وہاں بک رہی ہوتی ہے, ہم وہاں سے خرید کے واپس یوز کرتے ہیں. لیکن آپ لوگوں نے اسکولز کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ کوئی بزنس سینٹر ہے آپ کا؟ نہیں سوری اللہ نہ کرے. آپ کی کیا فیس ہے؟ کس کی؟ اسکول کی. ہماری 3,500 روپے, کوئی زیادہ نہیں. 3,500 روپے. آپ بتائیے. 10,000 تک پہنچ جاتی ہے پورے مہینے کی. ہاں سر کبھی کچھ.
अच्छा वैन का किराया कह रहे हाँ हैं। आप मुझे बताएं आंटी, मेरा घर तो बराबर में ही है स्कूल हाँ के, मैं तो पैदल आ सकती हूँ, हाँ। मुझे वैन की क्या जरूरत है? बिल्कुल। तो ये सर मुझे ये कहते हैं कि ना बेटा वैन में आया करो और वैन में ही जाया करो। नहीं तो क्यों आपके माँ बाप, आपके पेरेंट्स ने क्यों अलाउ किया आपको वैन में जाना है? वो क्यों नहीं घर पे जाकर आपके स्कूल में जाकर छोड़ते हैं? बच्चे के घर के स्कूल के करीब ही इसका घर हाँ है, जी। तो रास्ते में कितने ट्रैफिक है और बच्ची ये भटक जाए और चली ट्रैफिक जाए। नहीं है, तो अब इसलिए देखें यहाँ स्कूल का गेट है, यहाँ मेरा गेट है, हाँ अब जी। इतने समय में क्या वैन तो में? आपके घर वालों ने क्यों आपको वैन पे भेज रहे हैं? इसलिए कि मैंने जिद की ना, मैं क्योंकि सर मुझे स्कूल में रोज मारते हैं। आप कि मारते वैन क्यों में है आप भाई? आए। आप लोग लेट क्यों आ- लेट आने पे कोई मारता है? नहीं, थोड़ा डांट आप पनिश कर दीजिए, आप पनिश कर दीजिए, आप स्कूल में एंट्री मत होने दीजिए, आप एंट्री बंद कर दीजिए, लेट लेकिन इसलिए- लेकिन मारते क्यों है आप? क्या लेट, मसलन लेट आने पे थोड़ा डांट देते हैं। अच्छा तो एक वो तो सेकंड मैं time पे पहुंचती एक सेकंड, एक कॉलर है, मैं कॉलर को ले लूं पहले लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं ज़मीन? मैं बिल्कुल खैर से, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहेंगी? सुबह बखैर। आपको भी सुबह बखैर। ये टीचर का और स्टूडेंट का बड़ा अच्छा शो जा रहा है। अच्छा जा रहा है। आपको कोई शिकायत है टीचर से? बहुत बहुत सारी शिकायत। अच्छा क्या? ये शिकायत देखिए, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, ठीक है हम मानते हैं। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में एक तो स्टूडेंट को नहीं बुलाना चाहिए, सिर्फ पेरेंट्स और टीचर के दरमियान टॉक होना चाहिए। सही। दूसरा ये कि बस हर वक्त आप थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा मिस ज़मीन। क्लास में बच्चा होशियार है, आपको पता है कि क्लास में बच्चा अच्छा हाँ। होशियार है, टैलेंट है उसके अंदर। अब हर वक्त ये मस्ती करता है, ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है, हर वक्त बस कंप्लेन कर करके वो बच्चे को दिमागी तौर पे बस मैं तो ऐसा हूँ तो इसके लिए मैं तो ये करूंगा, खत्म बस। सही सही। तो बस बच्चे को मतलब वो हौसला देने की वजह टीचर ये करती है कि इसको या तो पनिश करेंगी या हौसला नहीं देंगी, और इनके साथ ये करती है। नहीं तो आपने कभी जाकर के इस टॉपिक पर बात करी उन टीचर्स से? कभी जाकर के बोला कि आप इस तरह से क्यों करते हो? जैसे कि बच्चों का बेस होता है, बेसिक जो होता है, बिल्कुल। जो बेसिक से बच्चों को सिखाना चाहिए वो सिखाने के बजाय बच्चों को डायरेक्ट अलग किसी क्लास के बच्चे को अब डायरेक्ट आप सिखाते क्लास 1 का कोर्स हो जाए तो वो बच्चे को कभी भी नहीं आएगा। जी हाँ बिल्कुल। मैंने उनको समझाने की कोशिश करी, वो टीचर ने नहीं मानता, नहीं हम जो जिस तरीके से करा रहे वो तरीका सही है। नहीं मिसेस अमीन, लेकिन आपने कभी कहा जाकर के आपने कंप्लेन करी? जी जी बिल्कुल, मैंने कंप्लेन कर चुकी हूँ। उन्होंने क्या रिएक्ट किया उस पे? कोई रिएक्ट नहीं हुआ, मैंने फिर छोड़ दी। अभी कल ही मीटिंग है, जब क्या हुआ कल क्या हुआ था? आप जरा जोर से बोलिएगा। कल बच्चों की पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, अच्छा अच्छा। की गई है, तो अब बात होगी कि क्या मेरी बात मैसेज कहाँ तक पहुँचा। अच्छा मुझे आपकी आवाज सही समझ नहीं आ रही है। मैसेज कहाँ तक पहुँचा वो कल पता चलेगा। हेलो हेलो, हाँ जी क्या कह रही हैं आप? मेरा मैसेज कल ही पहुँचेगा कि मुझे पता चलेगा मेरा मैसेज कहाँ तक पहुँचा है। अच्छा चलें ठीक है, कल फिर आप इसका रिजल्ट हमें बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच मिसेस अमीन। ये बात भी सही है कि जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है तो आप लोग बच्चों को मत बुलाया करें, और सेकेंडली चीज़ उन्होंने कहा कि आप लोग हर वक्त बुला करके जो है कंप्लेंट्स करते रहते हैं। आई डोंट नो कि आपका क्या हाल है, लेकिन ये कंप्लेन कैसे न करे, बच्चा सुबह आता ही सुस्त है। जब माँ बाप रात को 2-2:30 बजे सोएगा तो जाहिर सी बात है बच्चा भी तभी आप कितने बजे सोती हो बबली? सही मैं बात है। तो सही से 2 बताएं। बजे तक सो जाती हूँ। रात के 2 बजे? हम्म, तो रात के 2 बजे अगर आप सोएंगी तो सुबह आप फ्रेश कैसे उठेंगी? आप देखिए सुस्त आते हैं बच्चे, यकीन हाँ। करें वो आते हैं बिल्कुल जैसे मैं आपको बताऊं कि आपने कभी मुर्गियां देखी दड़बे में जो सुस्त पड़ी हुई थी, इस तरह बच्चे आते हैं। यकीन करें बहुत बुरा उनको जो है ना सुबह सुबह में बहुत मुश्किल होती है। हाँ। और नींद की वजह से मैं आपको बिल्कुल सही जो बात है। सुबह के फर्स्ट सेकंड थर्ड पीरियड होती है, हाँ। बच्चा उसमें active Fresh नहीं होता, हाँ। और उसको समझ नहीं आती सही। क्योंकि वो टीचर उस तरह पढ़ा रहा होता है। टाइम क्या होता है 45 मिनट एक पीरियड का, हाँ। लेकिन बच्चा सोया होता है सही। या वो सुस्त होता है। और खासकर ऐसे बच्चे पीछे बैठते हैं। सही। ठीक है, अब अगर हम उन्हें थोड़ा सा डांट देते, अच्छा डांटने से बच्चा थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है या थोड़ा गुस्सा उधर से हाँ हो जाता हो है, जाता ठीक है। है। अगर प्यार करेंगे तो वो सो जाएगा। लेकिन आप उसको प्यार से भी तो समझा सकते हैं ना, डांट की जबान तो कोई देखिए जबान ही हम नहीं है। कितनी बार इनके पेरेंट्स को बुलवा के ये कंप्लेन कर चुके हैं कि सुबह जब बच्चा आता है इसको जल्दी सुला दीजिएगा सुबह, लेकिन कोई सही भी है। नहीं। क्या जी आज हम नानों के यहाँ चले गए थे, आप शादी में चले गए, आज वहाँ चले गए। सही, और फिर जब रूटीन नजर- मेंटेन नहीं है यानी जी। कि। ठीक है, हम इनके पेरेंट्स से भी बात करेंगे। आपके घर वाले आपका रूटीन मेंटेन करते हैं या नहीं करते, क्या करते हैं?
सब करते हैं। और आंटी मैं आपको ना इनकी 2 बातों का भी जवाब दूंगी। इन्होंने क्या कहा था पहले कि ये लेट आती है। पता है मैं लेट नहीं आती हूँ, मैं तो 15 मिनट पहले पहुंचती हूँ। Very लेकिन good. ना गेट पे जो वॉचमैन है ना, हाँ जी। जो जी हाँ। उनको है ना इन्होंने कह के रखा है, अगर जो बच्चे मेरी वैन में नहीं आते ना उनको है ना रोक के रखा करो, और है ना लेट क्लास में आएंगे लेट तो इनकी वैन अलग है, इनकी वैन अलग है। इन्हीं की वैन है। अगर बच्चे पड़ोस में भी रह रहे ना तो वैन में आए ताकि वैन का फीस दी जाए, इसलिए। और आप कह रहे हैं ना रात को 2 बजे क्यों सोती हूँ, मैं जानबूझ के सोती हूँ। मुझे ना 8 बजे से नींद आना शुरू हो जाती है, लेकिन मैं नहीं सोती हूँ, क्यों? मैं 2 बजे सोती हूँ। क्यों आप इतना इसलिए लेट सोते हो? स्कूल में जाके क्या करें आंटी, वहाँ पर भी ना स्कूल में जाके बस ऐसे ही हूँ बैठे रहो, कुछ पढ़ाई नहीं होती, कुछ नहीं होता। और है ना ऐसा पढ़ा रहे होते जो समझ में नहीं आता। मैं सर से पूछती हूँ, सर आपने ये क्या लिखा है, समझ नहीं आया, फिर से बताए। बोले समझ आया या नहीं आया, मैंने लिख दिया है बस। आपके बताइए। टीचर, आपका कितना स्टाफ है, कितने टीचर्स हैं आपके स्कूल में? तकरीबन हम 30-35 लोग इसमें काम करते हैं, जिसमें क्या हुआ? एक watchman मिनट, भी है, एक मिनट, जिसमें, क्या हुआ? कितने टीचर्स हैं आपके? 3 है। एक इनका 6 साल का बेटा जो इनसे बड़ा टीचर है, और एक ये, और एक इन्होंने ना एक स्वीपर रखा हुआ है, वो भी हमको पढ़ाता है। तो बेटा, आपके जब घर हम- वालों ने क्यों आपको ऐसे स्कूल में डाला हुआ है भाई? बेटा वो बातें हम घर करो। वालों को बता नहीं सकते ना, क्यों? बहुत मारते हैं सर। तो मारे या कुछ भी करें, लेकिन आप कंप्लेन करें, ये तो ये गलत बात है। बच्चे बेटा, मैं तो तुम्हें स्कूल में रख के ही फंस गया। ये तुमने अजीब सी बातें कर रही है तुम क्या मैं क्या 6 मतलब आपका स्वीपर भी पढ़ाता है? ये कह रही स्वीपर है को तो हम नहीं, छोड़ रहे हैं। स्वीपर तो फिर भी कुछ पढ़ा लेगा, हाँ हो सकता है पढ़ा लिखा हो। मेरा 6 साल का बच्चा ये वो देखिए। कहते लेकिन हैं नहीं, मैं नहीं मान सकती कैसी प्लीज बात बबली, मैं ये बात नहीं मान आप सकती। मेरे कोई भी स्कूल में स्कूल आप ऐसा नहीं हो सकता कि जहाँ पे जो है 6 साल का बच्चा पढ़ा रहा होगा, ऐसा कैसे आप पॉसिबल है? एडमिशन ले लेना हमारे स्कूल में, मैंने आपको साफ एडमिशन नहीं पता चल लेना, जाएगा। लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ कैसे कैसे पॉसिबल ये है मेरे को बबली? मेंटली तौर पे ना ये कोई नफसियाती बच्ची लगती है, और ये जो है ना मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा, ये आपके साथ बदतमीजी वगैरह तो कुछ नहीं होती है? करती है अच्छा, किस तरह की? टीचर के क्या होना चाहिए, टीचर के लिए क्या होना चाहिए, आप बताइए, क्या रिस्पेक्ट होनी चाहिए उसकी? बिल्कुल, उसको अपने पेरेंट्स की तरह समझना चाहिए, उनको अपने। ठीक है, मैं तो आप कहती हूँ तो इनके पापा साथ- पापा डैडी डैडी, तो बोलते मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ, सर हूँ। अब बता आप कितने पेरेंट्स की तरह होते हैं, हम नहीं कहते डैडी डैडी 10 रुपए दो ना। देखें अरे देखें देखें, आप 10 रुपए क्यों आप मांग रहे हैं? डैडी डैडी 10 रुपए दो ना, लॉलीपॉप चाहिए। देखो बेटा, तुम्हारे अब्बू को अगर पता चल गया डैडी मुझे बोल रही है, तो वो तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे या मुझे मार देंगे। ऐसी बातें नहीं करो आप। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि रिस्पेक्ट क्या करते हैं जब हम सामने। अच्छा, आपने क्या सोच के अपना स्कूल स्टार्ट किया? आपने क्या सोचा था कि आप कैसी एजुकेशन देंगे? क्या आपका क्या अच्छी सोच के आपने- एजुकेशन देंगे, क्या कैसी एजुकेशन? एजुकेशन क्या मसलन अच्छी एजुकेशन। और मैं आपको हकीकत बताना चाह रहा हूँ कि जो पैसे वाले लोग हैं उनसे हम पैसा लेते हैं, उसके अलावा भी हम बेशुमार जो पैसे वाले लोग हैं उनसे पैसे लेते हैं, क्या मतलब? मेरे कहने का मतलब है कि जो पैसे जो अफोर्ड कर पाते हैं उनसे हम एक्चुअल पूरी फीस लेते हैं, लेकिन हम बेशुमार बच्चों को फ्री एजुकेशन भी दे रहे हैं। अच्छा। यानी कि इनसे जो पैसा लेते हैं, इनसे जो इजाफी बुक्स लेते हैं, ये चीजें हम उन बच्चों को दे देते अच्छा, हैं सही। ताकि वो भी इनके साथ बैठ के पढ़ सके। हाँ, सही। अच्छा, यानी कि लाइक ये कह रहे हैं कि इनके ऐसे भी बच्चे हैं जो आप डोनेशंस देते हैं, वो करते हैं, तो उनकी मदद भी करते हैं, तो ये तो अच्छी बात है। कोई नहीं मदद करते। मैं आपको बताऊं, अभी जो है ना सैलाब वाला जो मसला होता है, सैलाब ज़रकान का जो मसला हुआ था ना, तो इन्होंने क्या किया, हम सबसे चीजें मंगवाई। ठीक है। सारे बच्चे, मैं भी पता है अपने नए ड्रेस नए सैंडल सब लेकर आए। मैंने कहा बहुत बेचारे अच्छी उन बात थी। बच्चों को मिलेंगे ना, वो पहनेंगे तो हमें दुआ देंगे, हाँ। तो हमारी किसी अच्छी स्कूल में एडमिशन हो जाएगा और हम भी पढ़े लिखे हो जाएंगे। इसलिए मैंने ना सब दे दिया। और फिर पता चला कि सर ने तो सारी चीजें बेच दी। आप तुम साथ थी मेरे जब मैं बेचने और गया था? हाँ, एक मिनट। वो पठान आया था ना हमारे पास, उनको है ना लुंडा में जो है ना काम करता है ना, उसको कपड़े दे दिए। मैंने कहा सर ये कौन है? हम सब ने पूछा, सर ने कहा ये ना खैबर पख्तूनख्वा है। क्या मतलब? बता नहीं। देखिए मेरी बात सुनिए, बच्ची हैं, होता ये है नहीं, कि मेरी बात सुनिए, एक मिनट देखिए ना, मेरी आप बात पहले इस बात को खत्म करें। क्या आपने वाकई वो कपड़े ऐसा जो हो इन लोगों ने सकता अपनी है, मदद के ऐसा लिए हो सकता सराह है, देते ये हैं? बच्चे जो कपड़े लाए थे, देखिए, हमें नहीं पता कैसा हो सकता है, नहीं हो सकता। हमें तो पता लगी, हमें तो मेरी बात- रिपोर्ट मिली, तो हमने आपको अपने मेरी मॉर्निंग बात शो पे सुनिए, बुलाया ना। ये जो कपड़े बच्चे लाए थे, जी। ठीक है, उनमें से जो अच्छे कपड़े थे वो हमने साइड पे कर लिए, जो बहुत सही कपड़े नहीं थे तो हम वहां उन बच्चों को क्यों दें? पहले उन लूटे हुए हैं वो
तो वहां पे वो कपड़े क्यों गए? तो हमने वो कपड़े बेचे जरूर, आप एक मिनट, तो आप वो ये कपड़े करते, हमने आप ये यहाँ करते, बेचे जरूर, लेकिन उनके पैसों से हमने उनके खाने पीने की अच्छा, चलें, ये भी एक अच्छी चीज है। वो लिए। जी नहीं, मैं आपको एक और बात बताती हूँ। आप सियासी शो में आए हो बेटा, मेरा ही बेड़ा गर्क करने पे लगी हुई हो आप। मैं तो सच बोलती हूँ ना, आप ही तो कहते हैं कि ना देखो बच्चों को सच बोलना चाहिए, ऐसे मेरे बारे में झूठ बोलना चाहिए, बाकी सब सच ये बोलना सारा चाहिए। सच सिर्फ स्कूल के बारे में ही है, बाकी नहीं, घर में कुछ नहीं होता। स्कूल के, देखें स्कूल के क्या प्रॉब्लम्स हैं, हमें वो प्रॉब्लम्स बताइए प्लीज, आप बताइए, और आप मैं- बताइए ताकि हम उसका हल निकालें। मैं आपको और बताती हूँ, आप भी पता